हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू किरण's बायोलॉजी। आज जो हम प्रोसेस सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टार्ट करेंगे स्टडी करेंगे वो है आपका ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसक्रिप्शन इन स्पेशली इन केस ऑफ प्रोकैरियोट एंड उसमें भी हम सिर्फ एक ही स्टेप जो है वो स्टडी करेंगे विच इज द इनिशिएशन बिकॉज इट इज रादर कॉम्प्लेक्स एंड अदर स्टेप्स एंड it will take some time to understand all the minor details about the initiation step of transcription in case of prokaryotic organisms. So before jumping into the details, let's see what are the different steps in transcription. So आपका transcription process, whether it is eukaryote or prokaryote, it involves three steps. First is the initiation, elongation and termination. Initiation, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, so it marks the beginning of the process. So यहाँ पे आपका जो RNA polymerase है from its um, inactive or inert state, it will become active and it will it is marked by the formation of a transcription bubble and RNA polymerase start um, polymerizing RNTPs. There are many factors involved in the process, which we are going to see in detail in the next few minutes. And then after initiation, the step process enters into elongation phase. After elongation, with the signal coming from the termination codon, the process will terminate, releasing the um, an mRNA transcript, which has the message for the protein synthesis into the cytoplasm in case of prokaryotes. So this is just the basic idea about the process of transcription. Now, before going into details about the transcription in prokaryotes, we should be aware about the gene structure of prokaryotes, right? Then only we'll be able to know what are the different minute details regarding um, the process and its initiation. So, in case of prokaryotes, the gene is divided, you can say gene के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं उसको हम कुछ स्पेसिफिक जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि पहला आपका आ गया प्रमोटर जोन, कोडिंग रीजन एंड देन द अनट्रांसलेटेड रीजन. सो प्रमोटर कौन सा रीजन हो गया? इट विल बी लोकेटेड closer to the coding region, and this promoter region it marks as a site for the binding of the RNA polymerase. तो एंजाइम जो है प्रोसेस पूरा कंप्लीट करेगा ट्रांसक्रिप्शन का, उसको बाइंड करने के लिए एक लोकेशन चाहिए एंड दैट लोकेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय द प्रमोटर रीजन ऑफ द जीन. फिर उसके बाद आपका मेजर इंपॉर्टेंट रीजन है कोडिंग रीजन. नाउ कोडिंग रीजन जो है इट इज द एक्चुअल जीन which has the information for the synthesis of protein. So ये आपका main important functional nucleotide sequence है that will result ultimately into a protein structure. And in between there are certain regions which are called as untranslated regions, meaning they are there but they may serve a different purpose, they may not form a functional protein. So these are the different aspects of gene in case of prokaryotes. And in addition to all this, the coding region will have a start codon and a stop codon as well. Now see, here again, the same thing is repeated. So, promoter is the place where RNA polymerase will bind, and this site is recognized with the help of an additional factor, which in case of prokaryote called as sigma factor. Now, then we have a coding region, sequences which carry information for RNA synthesis, and at the end of the process, there will be a termination sequence which will act as a signal to stop the process of transcription. Okay, so now we'll see that how the initiation step proceeds. हमें ऑलरेडी अब जीन के स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया है, प्रोमोटर रीजन्स के बारे में पता चल गया है, कोडिंग रीजन के बारे में पता चल गया है, राइट?
Now we have to see or we have to dissect the promoter region. तुम्हें पता है जो प्रोकैरियोटिक जीन जो है वो ट्रांसक्राइब करती है तो आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से करती है बट आरएनए पॉलीमरेज जो है अकेली वो ये प्रोसेस इनिशिएट नहीं कर सकता irrespective of the fact that if RNA polymerase is attached to the promoter region, it will not be able to start the process of transcription. उसके लिए उसको एडिशनल फैक्टर की जरूरत होती है उसे हम सिग्मा फैक्टर बोलते हैं विच वी आर गोइंग टू सी इन द वीडियो डाउन द लाइन सो यहाँ पे पहली चीज हम देखेंगे कि जो आपका प्रमोटर है उसके अंदर भी स्पेसिफिकली दो रीजन्स होते हैं पहली इंपॉर्टेंट चीज तो हो गई कि प्रमोटर जो है आपके कोडिंग रीजन से stream located at towards the 5 dash and it is located and then this these two regions one is called as the minus 10 region and the other one is called as the minus 35 region so this total of these two regions which will be maybe around 40 to 50 base pairs long it forms the promoter और यहाँ पे -10 -35 का क्या मतलब है that it is -10 nucleotide base pairs upstream from the transcription site and this 35 region it is um, 35 nucleotide bases upstream the transcription site which we already saw in the last slide that it was called as the plus one site. Okay. So ये जो दोनों sequences हैं -10 and -35 one is called as the Tata box and this one is called as the TTGACA box. Okay. So ये दोनों regions जो है they are represented by conserved sequences. Conserved sequences क्या है कि अगर हम बहुत सारे prokaryotic organisms में promoter को study करेंगे तो हमें ये वाले same type के sequences जो हैं वो देखने को मिलेंगे. तो ये जो प्रमोटर रीजन है इनकी अपनी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है इफ यू सी दैट दिस आटा बॉक्स इट हैज TA so most of them they are these TA इनकी बेस इन बेसिस की क्या स्पेशलिटी होती है दे फॉर्म्स अ डबल बॉन्ड सो डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक करने में इजी होता है राइट सो बिकॉज ऑफ दैट दिस साइट सर्व एज अ मेल्टिंग पॉइंट and this upstream minus 35 region, it serve as a binding site for the RNA polymerase and sigma factor. आगे की स्लाइड्स में हम वो देखेंगे. So this is a picture of a RNA polymerase. So this purple portion is the RNA polymerase and the structure looks like a um, like uh, a palm. So just like a DNA polymerase, the structure is look like a palm with a finger and a thumb domains. So here these beta and beta dash pincers, these act as a clamp. Then we have a beta flap. Then other than that, we have other subunits like alpha, two subunits of alpha, and then we have one omega subunit. So that's those are all the subunits which forms the RNA core enzyme, RNA polymerase core enzyme. Okay. Now RNA polymerase core enzyme जब तक सिग्मा फैक्टर से नहीं मिलता वो एक एक्टिव होलो एंजाइम नहीं बनाता जब होलो एंजाइम बनेगा then only the process will start. So now if you see in this picture, in this image, so this RNA polymerase, which is marked by the purple portion, we have, and this, there is a DNA double strand template also going through it, weaving through it. Then we have certain structures like these blue structures, this yellow structure, this orange structure. So these are different subunits of the sigma factor. Okay, so sigma factor, in case of prokaryotes, we usually, the sigma factor which is found is sigma 70. वो हमें चाहिए होता है इनिशिएशन करवाने के लिए फॉर ट्रांसक्रिप्शन. अब जो सिग्मा फैक्टर होता है उसके अंदर 4 रीजन्स होते हैं यानी कि उसके 4 डोमेन्स हैं एंड these 4 domains called as 1 2 3 and 4 they serve different type of उनके अपने अपने फंक्शंस हैं. ओके. सो अगर हम इस पर्टिकुलर इमेज में देखेंगे देन यू विल बी एबल टू सी क्लियरली द सिग्मा फैक्टर डोमेन्स. पहला डोमेन आपका सिग्मा 1, देन वी हैव द सिग्मा 2,
Then we have the sigma 3, and this is sigma 4 domain. Okay. Now, if you see, there is sigma 3.1 and sigma 3.2. So both of these will lie in the sigma 3 domain, but these are specific regions which we'll see. इसमें से 3.2 जो है उसका कुछ एक्टिव रोल होता है to to move the initiation step फॉरवर्ड। ठीक है। तो यहाँ पे और उसके एडिशन में हमारे पास और चीजें हैं, जैसे कि ये आपका पॉलीमरेज में टी चैनल विच इज द टेम्पलेट चैनल, नॉन टेम्पलेट डीएनए चैनल, देन वी हैव आरएनए एग्जिट चैनल। सो ऑल दीज crevices in the RNA polymerase, they serve as the entry and exit point for DNA as well as RNA. Okay. Now we will see how the sigma factor, it helps the RNA polymerase to become an active polymerase enzyme. Okay. अब इसमें सबसे पहला जो आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है वो आपका आ गया रीजन 4। सिग्मा फैक्टर का जो रीजन 4 है वो क्या करता है, वो बाइंड करता है on the negative 35. If you see, there is a negative 35 site. So this negative 35 site, it helps in the recruitment of the sigma 4 region of sigma factor 70. And once it binds to this region, what happens that it is comprised of, this region is comprised of two helix. जैसे कि अब ये बेसिकली ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन जो होते हैं या तो वो हेलिक्स की फॉर्म में या शीट्स की फॉर्म में होते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, ये हेलिक टर्न हेलिक कॉम्प्लेक्स बनाता है। वो क्या होता है, रीजन के अंदर दो हेलिक्स होते हैं और दोनों हेलिक्स जो है वो क्या करते हैं, एक जो है it will go from the promoter side, and the second helix it will go from the underside, and it helps in the binding of this sigma factor to strongly to the DNA strand. So this tight grip of the sigma factor, it provides the binding energy to secure the polymerase to the promoter, right? हमें ये चीज़ पहले से पता है कि जो पॉलीमरेज़ेज़ होते हैं, चाहे वो डीएनए पॉलीमरेज़ हो, चाहे वो आरएनए पॉलीमरेज़ हो, उनकी एक इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक या लिमिटेशन होती है, व्हिच समटाइम्स वी रेफर इट एज़ अ प्रोसेसिविटी, कि वो बहुत फास्ट पेस पे विदाउट फॉलिंग ऑफ पॉलीमराइज़ेशन नहीं करा सकते। कुछ राउंड्स के बाद वो क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं टेम्पलेट को, चाहे वो मतलब डीएनए का टेम्पलेट हो रेप्लिकेशन के टाइम में, या फिर डीएनए आरएनए टेम्पलेट है, तो वो जो लूज उनकी ग्रिप जो होती है वो लूज रहती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिग्मा फैक्टर वो मेक श्योर कर रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर के साथ टाइटली बाइंड हो जाए, पहली चीज। and with the help of its sigma 4 region. Then the another region was, अब हमें बाइंडिंग मिल गई, राइट? जो जो दूसरा सेट था, टाटा बॉक्स था, वहां क्या हो रहा था, मेल्टिंग हो रही थी। मेल्टिंग का मतलब हो गया अनवाइंडिंग ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, व्हिच मींस दैट देयर हैज टू बी सम ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों में ब्रेक होने चाहिए, एंड दो स्ट्रैंड्स जो हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड्स एंड नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, दे नीड टू बी ओपनड अप। अब जब तक ओपन नहीं होंगे तब तक हम कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को रीड नहीं कर सकते, पॉलीमरेज रीड नहीं कर पाएगा, और प्रोसेस जो है स्टार्ट नहीं होगा। तो वो मेल्टिंग जो है वो टाटा बॉक्स वाले पोजीशन पे होती है। एंड प्लीज रिमेंबर दैट दीज साइट्स आर स्टिल लोकेटेड अपस्ट्रीम टू द एक्चुअल जीन। एक्चुअल जीन के बहुत पहले ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे रीजन 2 जो है वो क्या करेगा, -10 साइड के साथ बाइंड करेगा और वहां पे प्रोसेस स्टार्ट करेगा, जिसे हम बोलते हैं मेल्टिंग ऑफ डीएनए। ओके। अब मेल्टिंग ऑफ डीएनए कैसे होता है, यहाँ पे आपका कोई भी पूरे प्रोसेस में देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, एटीपी की कहीं भी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो सिग्मा फैक्टर है वो एक प्रोटीन है, और जब ये प्रोटीन बाइंड करता है स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए के साथ, तो वो एक ऐसा स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट पैदा कर देता है डीएनए स्ट्रैंड में, दैट द डीएनए हैज टू ओपन अप। And it is because of the presence of several aromatic amino acids, जो आपका सिग्मा फैक्टर में सेकेंड रीजन है, उसमें बहुत सारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो
एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, बेसिस के साथ इंटरैक्ट करते हैं ऑफ नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, और वो क्या करते हैं वहाँ पे स्ट्रेन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो डीएनए टेम्पलेट होता है वहाँ पे डबल बॉन्ड्स हैं ऑलरेडी, टीए है, तो वो ओपन अप होना शुरू हो जाता है। ठीक है? Now, once it starts opening up, then there is a creation of a small transcription bubble. Okay? तो यहाँ पे अभी हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज की कॉन्फर्मेशन में चेंजेस आ रही हैं। सो पहला कॉम्प्लेक्स जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ और वहाँ पे आपका सिग्मा 4 रीजन ऑफ सिग्मा फैक्टर ने -35 के साथ अटैचमेंट शो किया, इट at up to this point it is called as a closed complex because there is no bubble formation. Then slowly and steadily, because of the conformational change in the sigma protein, it changes the -10 sites, -10 site को, and result into the unbounding. And that creates a small bubble, and the complex now is called as the open binary complex, and the process is called as the isomerization. ओके, अब यहाँ पे ये जो आइसोमेराइजेशन का प्रोसेस है, ऑल्दो देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, बट दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। ये प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल है। क्यों इरिवर्सिबल है? क्योंकि अभी तक यहाँ पे सिग्मा फैक्टर जो है वो टाइटली सिक्योर्ड है। जब सिक्योर हो गया है तो वो बबल फॉर्मेशन जो है वापस से रिवर्ट बैक नहीं हो सकता है। ठीक है? और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो एक्चुअली स्टार्ट करेगा आपका नेक्स्ट स्टेप, जहाँ पे आपकी जो आरएनए पॉलीमरेज है, इट्स गोइंग टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। ओके, सो अभी तक हमने ऑलरेडी देख लिया दैट नाउ वी हैव अचीव an open complex, and then we also um, have achieved a small transcription bubble at the -10 site. So ये सारी चीजें जो हैं ये प्रोसेस को इनिशिएट करने में हेल्प कर रही हैं। तो यहाँ पे देर इज अ मेंशन दैट आरएनए जब क्लोज से ओपन फॉर्म में आता है तो जो बीटा पिंसर इनके सब यूनिट्स हैं, बीटा डैश एंड बीटा पिंसर, so these two subunits, it actively form the active site। कि पॉलीमराइजेशन के लिए जो एक्टिव साइट होती है वो दो ये सब यूनिट्स जो हैं वो बनाते हैं। ठीक है? सो नाउ वी ऑलरेडी इन द लास्ट स्लाइड वी हैव सीन दैट दिस टी टी क्या है, ये एंटी चैनल क्या है, ये सारी, और आरएनए एग्जिट चैनल क्या है। तो अगर हम टोटली देखेंगे तो आरएनए पॉलीमरेज के अंदर आपके पास 5 चैनल्स हैं, जिसमें से पहला एक चैनल इम्पोर्टेंट चैनल आ गया एनटीपी अपटेक। यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है, it will come through this particular channel. Then we have an RNA exit. Here you can see it as well. So newly synthesized RNA will exit out from this site, and then rest three जो channels हैं, that those channels they will first allow the entry of the DNA, and then allow the exit of the template and non-template DNA. So these are the 5 channels that are present in the active RNA polymerase. Now, what happens? The meltings, we all know it started at the -10 site, but it's not that only only those 10 nucleotide bases they opened up or unwound. So they just mark the initiation of the formation of the transcription bubble. और वो melting जो है -10 से लेकर it sometimes extend to +3 साइट। +3 मीन्स जहां से आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है उसको हम +1 साइट बोल रहे हैं। सो उससे एक दो न्यूक्लियोटाइड आगे पीछे भी होती है। तो वो जो आपका है मेल्टिंग का पॉइंट है। नाउ जब ये मेल्टिंग पॉइंट बन गया, यानी कि छोटा सा एक ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गया और आपका आरएनए पॉलीमरेज भी अब एक्टिव है, देन व्हाट विल हैपन दैट दी एंटीपीज जो आपके न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स हैं वो वहां पे आपके इस पर्टिकुलर एनटीपी अपटेक चैनल से एंटर करेंगे इनटू द एक्टिव साइट। एंड आरएनए पॉलीमरेज, वी ऑल नो डीएनए पॉलीमरेज का क्या ड्रॉबैक लिमिटेशन होता है, दैट इट नीड्स एन एग्जिस्टिंग प्राइमर, and then only it can perform the polymerization. However, it's not the case with RNA polymerase. RNA polymerase जो है अपने आप ही with from scratch it can start the process of polymerization.
तो जैसे ही आपका एनटीपी चैनल के थ्रू एनटीपीज आने लगते हैं, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो कर दो एनटीपीज के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है, एंड अल्टीमेटली इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग अ ग्रोइंग आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। अब वहां से आरएनए आपका बनना शुरू हो जाएगा। ओके, नाउ एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है प्रोकैरियोट के केस में, विच वी कॉल एज द अबॉर्टिव इनिशिएशन। सो व्हेन दिस इनिशिएशन स्टार्टेड, जैसे ही शुरू के कुछ न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो पॉलीमराइज हो, आरएनए पॉलीमरेज करता है, तो क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ रीचिंग अप टू 10 न्यूक्लियोटाइड्स, 10 न्यूक्लियोटाइड की चेन से छोटे ही न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, इट स्टार्ट्स गेटिंग फॉलिंग ऑफ। वो उससे आगे जो है पॉलीमराइजेशन कंटिन्यू नहीं कर पाता पॉलीमरेज। उसका एक उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अबॉर्टिव इनिशिएशन। यानी कि जो RNTPs हैं, it will polymerize, but the chain length will be less than 10, and it keeps on falling off from the polymerase। वो वहां से रिलीज होता जाएगा, कंटिन्यू नहीं कर पाएगा प्रोसेस। और ये इसका एक प्रोबेबल रीजन ये होता है दैट इफ यू रिमेंबर, आई हैव मेंशन दिस थ्री साइड, राइट, सिग्मा थ्री रीजन ऑफ सिग्मा फैक्टर। सो उसमें सारा सिग्मा फैक्टर जो है नाउ इट हैज बिकम लूजन अप। जब बबल फॉर्मेशन हुआ तो बाकी का फैक्टर के रीजन्स जो है वो लूज होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो सिग्मा में आपका 3.2 है, इफ यू सी दिस 3.2 रीजन, इट एग्जिस्ट इन द आरएनए एग्जिट चैनल। सो यहाँ लोकेशन जो है इट सर्व एज अ कंस्ट्रेन कि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए है वो आरएनए एग्जिट चैनल से बाहर नहीं निकल पाता है। और वो बाहर निकलने का जो प्रोसेस है, उसके लिए जो आरएनए है उसको कुछ अटेम्प्ट्स लगते हैं। सो 9-10 न्यूक्लियोटाइड बेसेस जैसे बनते हैं, इट कीप्स ऑन पुशिंग दिस चैनल and try to remove this sigma 3.2 region of sigma factor, so that the channel becomes available for the continuation of the process of the RNA synthesis। So ये जो आपका एक important crucial step होता है in the process of initiation, and once the this particular region of sigma factor it is released from this RNA exit channel, the process continues और 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर से ज्यादा लेंथ में RNA जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, एंड अल्टीमेटली स्टेबल टर्नरी कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। स्टेबल टर्नरी कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया आपका एंजाइम उसमें प्रेजेंट है विच इज RNA पॉलीमरेज। देन वी हैव द सेकेंड कॉम्पोनेंट एज द DNA टेम्पलेट, जो आपको कोडिंग सीक्वेंसेस बताएगा। और थर्ड आपका आ गया ग्रोइंग आरएनए चेन, जो आपका आरएनए पॉलीमरेज जो है कैटालाइज करके फॉर्म करेगा। सो ये तीनों जो हैं एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और जब ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, दैट marks the end of the initiation phase of transcription and marks the beginning of the elongation phase of transcription. So for now, we are going to keep this video um, up to this point, and then in the next video, the second part of it, we are going to discuss the elongation as well as the termination of transcription in case of prokaryotic cell. Thank you.